Hi everyone, my name is Mrs. Shivani Sharma, educator from Pathway Academy. I am again before you and today I am going to explain you the second chapter Lost Spring. This chapter is included in book Flamingo Grade Plus 2 CBSE board. Let us start with the summary of the chapter Lost Spring. This chapter includes two stories. First of all, I would like to tell you about the author. The author of this chapter is Indian writer and she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. उनका बचपन जो था वो हैदराबाद के अंदर बीता. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हासिल की. She inherits the literary tradition from her parents, who were both writers. उन्होंने अपना लिटरेरी ज्ञान जो था वो अपने माता पिता से हासिल किया. उनके माता पिता दोनों ही एक अच्छे राइटर थे. एनिस जंग began her career as a writer in India. एनिस जंग ने अपना करियर एक राइटर के तौर पर भारत के अंदर ही शुरू किया. She has been the editor of Youth Times and a columnist for major newspapers in India and abroad. उन्होंने भारत के और विदेशों के न्यूज़पेपर के लिए बतौर एडिटर काम किया और वो एक स्पेशल कॉलम भी लिखती रही. She is the author of several books including Unveiling India, Night of the New Moon, Seven Sisters and Breaking the Silence. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. ये नीचे दिया गया जो चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग है वो एक उनकी लिखी हुई बुक स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है. Introduction of the chapter. The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children who get forced to miss the simple joyful moments of childhood cause of their socio-economic conditions. ये कहानी लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये कहानी गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति को प्रकट करती है कि वो अपनी स्कूल जाने वाली एज में स्कूल ना जाकर उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है और उनको घर से बाहर निकलकर पैसे कमाने पड़ते हैं और एक जिम्मेदारियों का जीवन जीना पड़ता है. Here author analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पर लेखिका जो है एक ऐसी गरीबी का वर्णन कर रही हैं जिसके अंदर इन बच्चों का बचपना पिसकर रह जाता है और समाज जो है इनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है. These children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in the life. इन बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता और किसी किस्म का कोई भी सुनहरा अवसर प्रदान नहीं होता और इन बच्चों को अपने बहुत ही कम उम्र में काम पर जाना पड़ता है. The author Anis Jung strives hard to eliminate child labor through her books. ऑथर ने अपनी किताबों और अपनी राइटिंग्स के माध्यम से चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष किया. शी प्रोपेगेट्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट. और उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि सरकार को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. The message is to put an end to child exploitation and let all children enjoy
their days of the spring and joy. इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बंद होनी चाहिए और हर बच्चे को अपना बचपन का जो सीजन है, जिसको स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करने देना चाहिए। नाउ समरी ऑफ द चैप्टर। This chapter includes two stories. One is of Sahib Alam, who is a rag picker, and second is of Mukesh, who is a son of bangle maker. Dear students, I have divided my this chapter in two videos. In first video, I am going to explain the story of Sahib Alam, who is a rag picker. Sometimes I find a rupee in the garbage. कई बार मुझे कूड़े करकट के ढेर में एक रुपीस मिल जाता है, 1 रुपया मिलता है। The first part talks about the writer's impressions about the life of the unfortunate rag pickers. कहानी का पहला पार्ट जो है उसके अंदर राइटर जो है एक रैग पिकर्स के बारे में, जिनको देखकर वो बहुत ही नाखुश है, उस इम्प्रेशन को प्रकट कर रही हैं। साहिब इज अ रैग पिकर। साहिब जो है एक कूड़े करकट के ढेर को बीनने वाला है। ही लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग टाइम अगो। ये लोग जो हैं बहुत सालों पहले अपना घर छोड़ चुके हैं। इनका घर जो था वो ढाका के अंदर था। द ऑथर कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। लेखिका का सामना हर सुबह साहिब के साथ होता है। एनिस जंग sees him daily scrounging the garbage dumps. एनिस जंग उसको हर रोज कूड़े करकट के ढेरों को फरोलते हुए देखती है। She asks साहिब why he does that. वो साहिब से पूछती है कि वो ऐसा क्यों करता है। साहिब mutters that he has nothing else to do. साहिब धीरे से जवाब देता है कि मेरे पास और करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो राइटर उससे पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते? There is no school in his neighborhood. तो वो बच्चा जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। He is poor and works barefooted. वो बहुत गरीब है और नंगे पांव घूमता है। एनिस जंग asks him his full name. एनिस जंग जो है उससे उसका पूरा नाम पूछती है। His full name is साहिब आलम। उसका पूरा नाम साहिब आलम है, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब है कि इस यूनिवर्स का देवता। दिस नेम इज आयरॉनिकल एज ही इज नॉट द लॉर्ड इवन हिज ओन लाइफ। ये नेम इतना दर्द से भरा हुआ है कि ये बच्चा जो है एक यूनिवर्स का देवता कैसे हो सकता है, जो कि अपनी ही किस्मत का मालिक नहीं है। वो एक पूरे यूनिवर्स का मालिक कैसे हो सकता है? There are 10,000 other shoeless rag pickers like साहिब। यहाँ पर साहिब की तरह 10,000 और shoeless rag pickers इधर उधर घूमते हैं। They live in सीमापुरी। ये लोग on the outer edge of Delhi। ये लोग दिल्ली के बाहरी इलाकों में सीमापुरी के अंदर रहते हैं। In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, but devoid of sewage, drainage और running water. ये लोग एक कच्चे घरों के अंदर रहते हैं। इनके घरों की छतें जो हैं वो टारपुलिन की बनी होती हैं और वहां पर सीवेज का भी किसी किस्म का कोई प्रबंध नहीं और ना ही पीने के पानी का कोई प्रबंध है। They are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ पर वो लोग आकर बसे हुए हैं जो 1971 के अंदर बांग्लादेश से उजड़ कर आए थे और वो लोग आकर इस एरिया में बस चुके हैं। They have lived here for more than 30 years. ये लोग यहाँ पर 30 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं विदाउट आइडेंटिटी कार्ड्स और परमिट्स। ये लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड और बिना परमिट के रह रहे हैं। They have right to vote.
लेकिन इन लोगों के पास वोट देने का अधिकार है। विद राशन कार्ड दे गेट ग्रेन्स। राशन कार्ड के साथ इन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसके साथ इन लोगों को थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इन लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड से ज्यादा भोजन महत्वपूर्ण है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, इनको जहां पर भी भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। वहीं पर जाकर ये लोग अपने टेंट गाड़ लेते हैं और वहीं पर उनके घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और ये बच्चे जो हैं इन टेंट्स में पले बड़े होते हैं। एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ये लोग भी सर्वाइवल में अपने माता पिता का हिस्सा बनते हैं। इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा करकट को बीनना। थ्रू द इयर्स रैग पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। कई सालों से रैग पिकिंग जो है एक बहुत ही अच्छी कला बन चुकी है इन लोगों के लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कूड़े के ढेर इनके लिए सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, क्योंकि ये उनके रोजी रोटी का साधन है और यही कूड़े का ढेर जो है उनके सर पर छत प्रोवाइड करवाता है। समटाइम्स साहिब फाइंड्स अ रूपी और इवन a 10 rupee नोट इन द गार्बेज heap। कई बार साहिब को इन कूड़े के ढेरों में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। देन देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। फिर साहिब के दिल के अंदर और पैसे मिलने की उम्मीद जाग उठती है। गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब अपने माता पिता से अलग ही होता है। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो ये एक कागजों के अंदर लिपटी हुई अद्भुत चीज होती है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़ों के लिए एक जीवन जीने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर फाइंड्स साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक बार सर्दियों की सुबह लेखक को साहिब जो है पास में ही एक क्लब के गेट के सामने खड़ा हुआ मिलता है। ही इज वॉचिंग टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस। वो दो जवान लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। दे आर ड्रेस्ड इन वाइट। वो टेनिस खेलने वाले जो लड़के हैं उन्होंने व्हाइट रंग की ड्रेस डाली हुई होती है। साहिब लाइक्स द गेम बट इज कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहिब जो है वो गेम को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उन लोगों को पीछे से खेलते हुए देखकर ही संतुष्ट होता है। साहिब इज वियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज। साहिब ने पुराने टेनिस के जूते डाल रखे हैं। दैट लुक स्टेन्स ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट। ये जूते जो हैं उसकी डिस्कलर्ड शर्ट के साथ बहुत ही अजीब नजर आते हैं और उसने एक शॉर्ट भी डाल रखी है। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, वो जो सारा दिन नंगे पांव घूमता फिरता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन उसको फटे पुराने जूते मिलने के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे उसका जूते पहनने का सपना पूरा हो गया हो। बट टेनिस इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन टेनिस जो है उसकी पहुंच से बहुत ही परे है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील की केतली पकड़ी हुई होती है। ही वर्क्स इन a टी स्टॉल। वो एक चाय की दुकान के ऊपर काम करता है। ही इज पेड 800 rupees। टी स्टॉल का मालिक जो है उसको 800 रुपए देता है एंड ऑल हिज मील, और दिन भर का खाना देता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर। अब साहिब जो है अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो एक नौकर बन चुका है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे ने बिल्कुल ही केयर फ्री लुक जो है वो खो चुका है।
He doesn't seem happy working at the tea stall. वो टी स्टॉल के ऊपर काम करके खुश नजर नहीं आता. Gist of lessons. Number 1. The author examines and analyzes the impoverished conditions and traditions that condemn children to a life of exploitation. These children are denied an education and forced into hardships early in their lives. Number 2. The writer encounters Sahib, a rag picker his parents have left behind the life of poverty in Dhaka to earn a living in Delhi. Number 3. His family, like many other families of rag pickers, lives in Simapuri. They do not have other identification other than a ration card. Number 4. The children do not go to school and they are excited at the prospect of finding a coin or even a 10 rupee note for rummaging in the garbage. Number 5. It is the only way of earning. Number 6. The writer is pained to see Sahib, a rag picker whose name means the rule of earth, lost the spark of childhood and roams barefooted with his friends. Number 7. From morning to noon, the author encounters him in a tea stall and is paid rupee 800. He sadly realizes that he is no longer his own master and this loss of identity weighs heavily on his tender shoulders. For second half of the story, stay with me in my second video. If you like my video, then hit the like button, subscribe my channel and share it. If you want the notification of my coming videos, then press the bell icon. If you want to give any suggestion, then write down the suggestion in the comment box. Thank you and have a nice day.